का जयपुर पर्यटन विज्ञान विभाग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर नितिन काम्बोज जी से कि वो माननीय बीकेएस संजय जी को पट्टा प्रदान करने का कष्ट करें। डॉक्टर विनोद कुमार माननीय कुल सचिव महोदय जी को पट्टा प्रदान करने का कष्ट करें। पुरोहित जी से निवेदन है वो डॉक्टर संजय को गौरव संजय को पट्टा प्रदान करने का कष्ट करें। हम यातायात सप्ताह के अंतर्गत हमारे मध्य डॉक्टर संजय बीके संजय और गौरव संजय उपस्थित हैं। Dr. Gaurav Sanjay and B.K. Sanjay is going to deliver some talk on the orthopedic related issue, especially when you are traveling. And Dr. Gaurav is going to present first. A brief introduction I would like to give. Dr. Gaurav did his MBBS in 2009 from Himalayan Institute of Medical Science, Joligrant. Then he did the also in 2012 from PGI Rohtak. He did clinical attachment in United Kingdom, United States, Canada, and he is visiting fellow in several other countries like Japan and Hong Kong. He served in Apollo Hospital and presently he is serving in Sanjay Hospital and Dehradun. He published more than 50 research articles and visited a number of more than 10 foreign countries in a short period of 6 years. He got several awards like the Sigma Healthcare Award, besides that Corona Warrior, COVID Fighters, and Arthur Ratna for Social and Medical Work. He did successful invasive fracture surgery in diabetic patients and also hip fracture surgery in non-Agenarian patients. So, Dr. Gaurav, I would like to request, please come on the dais. I would like to remind all of you that United Nations celebrates this every year, and every year they go with certain goals, and it's a privilege to actually speak in front of all of you because this is the age which is the most vulnerable age. I won't say the most important age. Important in the way that yes, everyone buys a bike, buys a two-wheeler or a four-wheeler. But from the safety point of view, you are the people who are most vulnerable for accidents. And in the following lecture, we will just brief you about the injuries which children or students like you are likely to face if you do not take care of yourself while driving on the road, if you do not follow the rules, what implications it has for you especially, and the indirect consequences it has for your family, and ultimately how you deter the nation from being a prosperous nation. Goal for United Nations which has set for the Road Safety Week, which is celebrated every year. For this year it is we should keep our speed at 30 kilometers per hour. So the reason for 30 kilometers per hour, which has been set by United Nations, is that at this speed, what usually happens is that we are able to take care of all these things. See, it is safe because the number of injuries and the number of deaths are decreased because it is a relatively slow speed. Apart from that, if you see that the mother is taking care of the child on the tram and taking him for a walk. So at this speed,
it is less likely that you will injure pedestrians. Pedestrians are people who are just walking on the streets. And if we walk, or if we usually within the confinements of the speed, we are also able to cause zero and carbon mobility, and it makes our streets more livable. So love for 30 is 30 kilometers per hour. Don't go faster than that. We've been taking care and trying to do our little bit for making the public more aware. So that we can do our bit to make the public aware about the implications of these road traffic accidents. So this was initially started by my father, who was also on the dais in 2013 when we started public awareness lectures, although this has been started long back in 2003. So this is a video which is quite interesting. आप देख सकते हैं कि ऐसे हम लोग भी गाड़ी चला रहे होते हैं. So आप इसमें आप क्या बताएंगे, गाड़ी वाले की गलती है या फिर बच्चे की गलती है? बच्चे की गलती है ना. लेकिन अब होगा अफसोस की बात है कि अभी तो आपके पास सारे आपके दोस्त लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ये जो हुआ ये गाड़ी वाले की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये बच्चे की वजह से हुआ. लेकिन आप लोकल पॉपुलेशन में कभी आप देखोगे कि 2 या 3 मिनट भी नहीं लगेंगे जिससे पहले अभी हाथापाई होना शुरू हो, और कि गाड़ी वाला है, तू गाड़ी वाला है, तेरे को दिखता नहीं है, बच्चा है. एंड ऑल दीज पीपल यू सी दीज, यही जो लोग हैं यही आपको अभी मार तोड़ाई करना शुरू कर देंगे. सी सो ऑल दीज आर नियर डेथ इंसिडेंसेस. आप सोचो, इसमें तो लग रहा है कि बच्चा ही मरेगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि मॉब जो अभी आपके पास आने वाली है वही आप ही को मार डाले. और अगर हम if we talk about statistics, in India there are 1.5 lakh deaths per year. I was talking to Dr. Purohit a little while back, and he himself said that within the COVID times, he himself was so surprised to know that the number of COVID deaths, हम सब लोग कहते हैं ना कोविड से, अरे यार कितने लोग मर रहे हैं, हर घर में कोई ना कोई मरे जा रहा है, आसपास के लोग, इतनी ज्यादा डेथ्स हो रही है, हॉस्पिटल्स आर full of patients. But if we see that in spite of the highest wave in India, जब पीक पर था कोविड की डेथ्स थी, it was still less than the amount of people who are dying by road traffic accidents. Accidents, आप देखिए 415 people die daily in road traffic accidents, which is much more than the people who have died in COVID. 70% of deaths occur in the age group of 18 to 45 years. आप देखिए, this is the young population. याद रखने के लिए, these are the people who go out on the roads and go out on the roads to earn a living for themselves and for their families, so that they can feed them. Around 5 lakh road traffic accidents are occurring per year. 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें से 3 लाख लोग जो है क्रिटिकल हो जाते हैं. With better quality of roads, the incidence of fast and polytraumatized patients is increasing. ये आपने देखा होगा कि पहले जो रोड बहुत टूटे फूटे होते थे, लेकिन अब जब रोड बहुत स्मूथ हो गई है तो जो हाई वेलोसिटी इंजरीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. कहने का मतलब ये है कि पहले हो सकता है आपका एक्सीडेंट हुआ हो, एक ही हड्डी टूटी हुई हो, लेकिन अब जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स फेस करते हैं हेड इंजरीज, चेस्ट इंजरीज, पॉलीट्रॉमेटाइज्ड लिम्स, दोनों ही 4 टांगे टूटी हुई हैं, हाथ टूटे हुए हैं. एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द नंबर ऑफ इंजरीज. इन लोगों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है. अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 2000 में जब ये स्टेट when it was formulated, we had only 4 lakh vehicles, and in the year 2020 we have 30 lakh vehicles. तो हम लोग बहुत तरक्की पे हैं. और अगर आप देखें कि परसेंटेज वाइज दिस इज 650% इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ व्हीकल्स. बट पर से हमें दिख रहा है कि देहरादून हरिद्वार कितना बढ़िया एक्सप्रेसवे या हाईवे हो गया है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली अगर आप देखो, कहने का मतलब है कि जितनी गाड़ियां अब रोड पर आ गई हैं, द रोड्स
have increased, but they can never increase to the proportion of the vehicles which will ultimately be on the road. ये देखिए, ये एक ड्राइवर ही था हमारे यहाँ का. This now a few slides are there to tell you injuries कितनी ज़्यादा होती हैं. ये एक ही टांग है जिसमें आप देखिए कि पीछे से घाव कितना बड़ा खुला हुआ है, आगे से भी खुला हुआ है. Ultimately, to cover his wound, we had to do some skin grafting. External fixator was applied for a particular amount of time. This was his first X-ray. If you can see, this is the X-ray of the leg, and his middle part of the leg is totally shattered. वही हड्डी के इतना चूरा चूरा हो गया. Patient initially went to some hospital. All the bones were removed, and ultimately this he's a driver. Recently he bought a Maruti Swift by himself. To think that now I don't have to get a rental car and give the wages away to the Malik. And he landed up with this accident. His bone was ultimately shortened by, if you cannot clearly visualize, this is 32 and 36 and 29. So almost 7 centimeters की इनकी टांग छोटी हो गई थी. आप देखने चाहेंगे तो ये दोनों लेवल बराबर होना चाहिए. तो ये इतनी छोटी टांग थी. Initially when we started to operate on him and try to give him a better quality of life. Ultimately, Elizarov method was applied for him, and you can see that this bone has been again it has been lengthened. इसको बढ़ाई गई है. So this accident, if you see that he was injured in 2019 September, and in February 2021, this was his last follow-up when he came. He's still under treatment. His fracture has not completely healed, although he has progressed. And he could finally manage his treatment because he had his brother who was kind enough to support him. तो आप देखिए 19 की चोट है और 2022 हो गया. 3 साल से he is unable to make any wages, help his family. Mentally is traumatized that he has to repay the loan back to his brother. And every time he comes, he's like, डॉक्टर साहब गाड़ी कब हम चलाना शुरू कर सकते हैं? अब बहुत समय हो गया है, बहुत मुश्किल हो रहा है घर का चलाना. ये देखिए ऐसे चोट लगती है. इनिशियली जब चोट लगी एक टांग काट दी गई, दूसरे टांग भी काटने की नौबत थी. फिर एक इनोवेटिव आइडिया कोशिश ये किया गया कि एक टांग जो बची हुई है उसको भी छोटा करके इस दोनों को हम लोगों ने बराबर किया. At least he has one limb on which he can put his weight. Other limb is artificial limb, and this patient is almost 10 years down the line. He's a follow-up of 10 years, and he's doing very well. ये देख सकते हैं चोट लगती है. जैसे आप देखेंगे इसका आधा जो सर है ऐसा लग रहा है फटा हो रखा है. So this gentleman, he is from चितरवाला only. इसको हेड इंजरी हुई. हेड इंजरी के बाद आपने सुना होगा कि हेड इंजरी कई बार इतनी सिवियर होती है और बहुत इमीडिएटली डेथ होने के चांस होते हैं इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से. तो ये जो खड्डा आ रखा है इसके सर पे, इस क्रेनियम जो कि स्कल बोन है, इट हैज बीन पार्शियली रिमूव्ड, एंड दिस इज टू अकोमोडेट हिज ब्रेन. और ताकि जैसे कहेंगे ब्रेन में जब स्वेलिंग है वो इतनी ज्यादा ना हो कि ब्रेन कंप्रेस होने लगे. अल्टीमेटली यू कैन सी इसकी एक टांग कटी थी, दूसरी टांग ऑलमोस्ट कटने की नौबत पे थी. हमारे पास इस स्थिति में आया था. Finally, we were able to save his limb. He got married. So this is a 25-year-old male. Another patient, Innova se somebody hit him. Consulted to us after 1.5 years, and ultimately it took him 5 years. Can you believe it? 5 साल लगे इसके सारे फ्रैक्चर को हील होने में. जहाँ पर गया पहली बारी ऑपरेशन में दिक्कत आई, इन्फेक्शन हो गया, एक ही हड्डी दो जगह से टूटी हुई थी. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेव दीस पेशेंट्स एंड सेव देयर लिम्स. एक और पेशेंट था पॉलीडोमेट, अगर आप देख सकते हैं साइंस के स्टूडेंट्स हैं. हीमोग्लोबिन है, जब ये चोट लगी इसका हीमोग्लोबिन 5.3, जो इसका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है जो कि 4 से 11,000 के बीच होना चाहिए, ये 28,000 है. डी डायमंड लेवल शूटिंग अप ऑलमोस्ट बाय 10 टाइम्स. ये आप देखेंगे, he is also a patient from near Fun Valley. Ultimately, he had so much of muscle damage and he was in septic shock.
सेप्टिक शॉक होता है जिसको हम कहते हैं कि सेप्टिक हो गया और पेशेंट कभी भी कोलैप्स कर सकता है, सारे इसकी सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं। आप देखेंगे इसको बचाने के लिए 17 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया, 10 सर्जिकल प्रोसीजर हुए 20 दिनों अंडर विदिन 20 days of hospitalization. His limb was almost about to go. We had to open his limb. This is known as compartment syndrome. कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ, इसको अंदर ही हड्डी नहीं टूटी थी लेकिन जो मसल्स हैं वो इतनी ज्यादा उसमें स्वेल हो रखी थी कि खून की नसें जो उसके टांग में थी वो दबने शुरू हो गई थी। The unfortunate part was that in the accident he lost his brother. इसका भाई ऑन स्पॉट मर गया था। His mother was already a widow and she could only bear the expenses of his treatment because जो मदर का जो भाई था he lived in Qatar and he was doing some job over there, तो वहाँ से उन्होंने अपने फाइनेंशियल सपोर्ट लेके आ पाया। He spent around 3 lakh rupees just to save his limb and save his life. ये देखिए, this is also a very interesting story. He is a very well renowned mechanic in Dehradun and इसको कभी एक्सीडेंट हुआ होगा बचपन में, तो जब उन्होंने ऑपरेशन कराया उसको इन्फेक्ट हो गया। इन्फेक्ट होने के बाद ये हड्डी जो है टेढ़ी जुड़ गई। अब सोशल इम्प्लीकेशंस देखिए, जब ये हड्डी टेढ़ी जुड़ी तो इसके घर वालों ने इसको घर से बाहर निकाल दिया। ये कहने लगे कि इसके ऊपर कोई नाग देवता का वो प्रकोप है और हम ऐसे लोगों को घर में नहीं रख सकते हैं। एंड आप देखिए कि अल्टीमेटली he was thrown out of the house and he is a very well known mechanic in Dehradun. Ultimately you can see this is the position in which his bones were malunited. Surgery had to be done for him. It was done in the several stage procedures and ultimately you can see that we corrected his deformity. So the message is that trauma or the accident which happened, they don't only like चोट लगी चलो ऑपरेशन करा, but they have many social implications for these people. Just imagine you will land up with a trauma and your family says no, you get out of here. Finally he was very grateful and he's fine right now. You can see this is a common scenario. This is a boy, 17-year-old male. He does not have any license and he was a driver driving since 3 years. So you can imagine that 14 साल से ये ड्राइव कर रहा था नेशनल हाईवे पे। He met with an accident, got an operation done, some mop left, got infected. So this is another, it's a hilarious video. You can just see this gentleman, you will see in a while in the video. And the question is, should such people be permitted to drive? So you see this man, okay? एक ठोका, दूसरा ठोका, ठीक है? अब देखो, तो कह रहा है बहुत चोट लगती है मुझे। नहीं, पापा की परी नहीं है, पापे का परा है। अब क्या है, कोई बंदा बाहर से आएगा तो उसको कहेगा कि या तू निकल ले, अब ये पीटेगा। तो ये कह रहा है चलो भागो, ठीक है? वो पीछे वाले में उसको आइडिया दे निकल ले यहाँ से। अब देखो महाशय को ले एक बार ही। So we say that people make mistakes, but we should learn from one mistake and not repeat the same mistake within a matter of 5 or 10 seconds. So this is another interesting video. I think you all should watch it. This was a experiment. This is a social experiment conducted in Hong Kong, in which this is a very common thing which we see nowadays, is that cell phones or mobile phones have become the #1 killer for youth people. The reason is we want to see WhatsApp, Instagram पर like करना है, अभी Snapchat भेजना है, hi बोल देना है, hello बोल देना है while we drive. So this is just an experiment in which ये लोग just imagine 10 people go to a hall, वहाँ पर टिकट लेते हैं, टिकट लेते हुए उनका मोबाइल नंबर फीड हो जाता है
और इन लोगों को बताते नहीं कि अंदर क्या हो रहा है ना। तो इनिशियली आपने देखा होगा जनगण मन शुरू होता है या ऑन द फर्स्ट स्क्रीन, तो ऐसे ही स्क्रीन पर ये लोग वहां पर दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन पर देखो लोग अभी कंफर्टेबल हो रहे हैं, अपने पॉपकॉर्न वगैरह सब तैयार हो गए। अब थोड़ी देर में ये देखो, ये सेंट्रल सिस्टम से ये सबको मैसेज भेजते हैं, आपने देखा होगा आजकल ना, बल्क मैसेज। तो इतने में हम देखते हैं आज किसी का घर में भी हमारा मैसेज शायद आया होगा। So I hope you can appreciate what the video was trying to tell you. It was just like एक आपको नोटिफिकेशन आती है, आपको लगता है क्या है, 2 मिनट की तो बात है, 2 मिनट भी क्या 5 सेकंड की बात है। So it's a reminder to keep your eyes on the road. It is very important that just 3 or 4 seconds can really change the difference between life and death. So very simple rule, I think. Always wear a helmet, but please don't wear it like this. ठीक है, क्योंकि ऐसे हेलमेट पहनने से शायद आपको लग रहा हो कि ना कान तो ठंडे हो जाएंगे, लेकिन जो इसकी एल्बो को चोट लगेगी, it will be very difficult to manage this elbow injury also, because ultimately the helmet will strangulate his elbow and it will cause the elbow to break at 2 places. Very difficult injury to manage. And also don't wear it like this. Very common. सर को बताना चाहूंगा मैं, अभी मैं गुरुकुल कांगड़ी में अंदर ही घुसा, तो ऐसे मैंने देखा एक नजरिया, ट्रिपलिंग कर रहे थे एक्टिवा पे, है ना, एंड हेलमेट भी नहीं पहने हुए थे। ठीक है, तो दिस फ्रेंड इज वेरी जेनरस। आप देखेंगे कि he is calling up his girlfriend probably and he has 4 people on the back which are wearing helmets. ठीक है, और ये हेलमेट कोई काम नहीं आएगा, जैसे वो एक बार ब्रेक लगाएगा, all these people will fall ahead of him. So please, everyone who has a 2-wheeler, get a helmet which is of the right size, okay? And the most important part about the helmet is definitely the make of it, but also the helmet strap. Okay? Helmet strap की उतनी importance है जैसे पजामे में नाड़ा है, ठीक है जी? अगर आपने नाड़ा नहीं बांधा तो वो गिरना ही गिरना है. So the helmet will be ultimately blamed because it's like अच्छा हेलमेट लिया था सर में तो फिर भी चोट लग गई. So these are time and tested things, and please use seat belts. Okay, seat belts आज के समय पर ऐसी नहीं है कि आपको लगवानी पड़ेगी. This is by law that all car makers they have to provide seat belts. But I think we should just take 5 or 10 seconds to belt ourselves. It is very very important. See, आप देखिए कि in foreign countries people are so concerned about safety that they are giving seat belts even to their pets. Okay, if you don't wear a seat belt, this will happen. Okay, until you दूसरी गाड़ी में पहुंचती. See, seat belt का आपको इससे अच्छा तो कोई एग्जांपल नहीं मिलता. Okay, so seat belts are very important, and they actually they can help you from getting a very grievous head injury, grievous chest injury. Seatbelts are one of the most effective road safety actions in history. Seatbelts have been shown to reduce the risk of fatal injury by up to 75%. See, seat belt से आगे नहीं पीछे भी जो लोग बैठते हैं वहाँ भी seat belt होती है. मुझे लगता है कई लोगों ने देखी भी नहीं होंगी कि हमारी गाड़ियों में बैक सीट पे seat belt होती है. Seatbelts save lives. Why would anyone travel in a vehicle without one? So I think it's a responsibility also of the driver. When you drive the car, you should always say भाई seat belt पहननी है और पहनो, नहीं पहननी है तो गाड़ी से उतरो. Use the zebra crossing if possible. I don't think so this has a much role in India where the cars are ahead of the zebra line. So even the drivers they don't have the manners of what this zebra line is. Government is just painting them and we don't know what their actual use is. Look left and right before crossing the road. Use overhead bridges, very less in I think I've just seen in Dehradun and over else. So everyone knows this rule, but please be sure that this light is very important. This yellow light. Okay, and most of the accidents which occur at crossings is because of this yellow light. Not because of this yellow light, it is because of of impatient drivers. क्या होता है, येलो लाइट है, आप सोचो कि
येलो से ग्रीन होनी है तो उसको जल्दी है कि यार मैं तो बड़े देर से इंतजार कर रहा हूँ, है ना, मुझे तो निकलना है। येलो होते वो पहले से वो घूमने लगता है। लेकिन जब ये ग्रीन से रेड हो रही होती है तो भी उस तरफ येलो हो रही होती है, उसको लगता है वह अभी निकल जाऊं, नहीं तो फिर से मुझे ना 50 सेकंड रुकना पड़ेगा। एंड दैट इज द टाइम व्हेन लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स आर देयर। अगर आपको कंसेप्ट नहीं है लो बीम हाई बीम का, मैं बताना चाहूंगा कि लो बीम is to be used within the city. When you are on a highway, that is the only time you use when you in the highway you use a high beam, okay? So that you know your visibility increases. But unfortunately बहुत लोगों को पता ही नहीं, वो बस खेलते रहते हैं उसके साथ कि भाई हाँ अब लाइट ज़्यादा दिख रही है। तो you should know that you know in a high beam, अगर आपने कभी हाईवे पर देखा हो, हाई बीम पर सामने से कोई गाड़ी आ रही हो, आपको कुछ दिखता ही नहीं है, and ultimately you end up cursing him कि इस वाले को चलाने नहीं आती, गाड़ी चलाने आती। बट इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो, जब आप भी चला रहे हो तो जब सामने से दोनों हाई बीम हो तो अल्टीमेटली आपको एक बार लो बीम करना जरूरी होता है, ठीक है। रेलवे क्रॉसिंग आजकल तो काफी कम हो गई है, बट यू नो दिस इज द ट्रेन आ रही है, जल्दी निकलना है, स्कूल से पहुंचना है, एंड दीज एक्सीडेंट्स आर वेरी फेटल, बहुत फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। सो दिस इज आई थिंक यू गाइस मस्ट हैव वॉच्ड इट एंड जस्ट अबाउट टू कंक्लूड माय लेक्चर। तो गाइस रोड किसी के बाप की नहीं है, ना मेरे ना आपकी। इट इज a you know resource which should be judiciously used by everyone, okay? Please don't litter on the roads, use roads for the purpose they are made for, and thank you everyone. Safe driving. Dr. Gaurav Sanjay for delivering excellent talk on road safety. इसी क्रम में हमारे मध्य डॉक्टर बीके संजय, एक प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक सर्जन भी उपस्थित हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं सुनील जी को धन्यवाद बोलूंगा कि इन्होंने इन्हीं के ये हमें यहाँ लाने में सूत्रधार का काम किया, क्योंकि मैंने हमारे ख्याल से कहूँ कि लगभग 15 साल से जानता हूँ, और उससे भी ज्यादा, क्योंकि पैरामेडिकल में भी आते थे तो 20 साल से ज्यादा मैं इनको जानता हूँ। वे डीएवी स्कूल में थे तो आते रहते थे ना, तब से हुआ। फिर इन्होंने बताया मैं तो गुरुकुल कांगड़ी में स्टार हो गया, तो मैंने कहा फिर इनके पद का भी थोड़ा सा मुझे भी लाभ मिले, तो मैंने फिर आपसे अनुरोध किया कि हम इस तरह का काम करते रहते। तो ये तो इनको पता था, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा इस अवसर को मैंने बड़े उससे, क्योंकि ये 13 से 17 को एक यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का प्रोग्राम होता है, तो 13 से 17 का है, तो मैं सोच रहा था कि इसी बीच में कर दूं। और सुनील जी ने तो ये भी कहा था कि 20 के बाद करेंगे, तो वाइस चांसलर साहब से मिलेंगे और आपकी अच्छी हॉस्पिटलिटी होगी। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया भाई सबसे पहले इनॉग्रल जो लेक्चर है वो आपके यहाँ देंगे, और गुरुकुल कांगड़ी जैसी विश्वविद्यालय से शुरू करना ये भी बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं तो ये जानता था कि कम से कम 100 साल पुरानी विश्वविद्यालय होगा। वो इसलिए कि जब दिल्ली से देहरादून आते थे तो देखते थे भाई पुरानी बिल्डिंग राइट साइड पे यही पड़ती है, जिसका जो डोम है वो भी बहुत इम्प्रेसिव है तब। और फिर मैं यहाँ पे गुरुकुल में मैं जो आपका प्रदेश का लोक सेवा आयोग है उसमें भी मैं एक्सपर्ट के नाते यहाँ पे आया हुआ, तो तब पहले आया था, अब मैं यहाँ पे दोबारा आ रहा हूँ। क्योंकि जैसा गौरव ने बताया, आप देखिए कि हम लोग क्यों सड़क सुरक्षा से जी पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब आप क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपने आप में 40 साल हो गए हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी का काम करते हुए, और इन 40 सालों में हमने तरह तरह के,
आप जैसे बच्चे लोगों की सच बता रहा हूँ, कई ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं देखी कि जिनको बताने में भी दुख होता है और आप सच में सुने तो आपके भी आंसू आ जाएंगे। तो मेरा ये नहीं, चूंकि आप देखें तो इसमें हमारे देखें तो यदि आप इंटरेस्ट देखें ना, जैसे कोई साइंस का रिसर्च पेपर लिखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। देखा जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट है हमारे इंटरेस्ट से, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मरीज आएंगे तो ऑपरेशन करेंगे तो पैसे भी मिलेंगे, नाम भी मिलेगा। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मुझे पैसे भी मिले, नाम भी मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पैसे और नाम हम किसी और से कमाएं, ना कि इस तरह के लोगों से कमाएं कि जो सच में बहुत तड़प रहे हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते। गौरव ने आपको बहुत सी ऐसी चीजें बताई जिन मरीजों के लिए। इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक पेशेंट के बारे में बताना चाहता, आज भी हमारे यहाँ एडमिट है। 23 साल का लड़का है, आप इसको गौर से सुनिए। 23 साल का लड़का ऋषिकेश में रहता है। माँ उसकी किसी डॉक्टर के घर में खाना बनाती, पिताजी उसका ऑटो चलाता है और लड़का खुद ड्राइवर है। ऋषिकेश से इंदौर तक ट्रक ले जाता है और उसको 6000 रुपए तनख्वाह मिलती है। अब आप सोचिए कि पूरे घर की यदि 3 लोगों की आमदनी लगाए तो शायद 20,000 रुपए ही होंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे यहाँ कोई भी ऑपरेशन 20,000 से नीचे इन तरह की मरीजों में नहीं होता। ये लाखों रुपए में इलाज होते हैं। जब वो बताए कि नहीं डॉक्टर साहब हम तो नहीं, और हमें तो टांग बचवानी और बच्चे की जान जानी चाहिए क्योंकि जवान लड़का है और नहीं रहेगा तो हम क्या करें। अब हमारे लिए कितनी कसमकस होती है, आप बताइए कि जिस पे लाखों रुपए लगने हैं उसको हम हजारों में कैसे कर सकते हैं। कई बार मना करने का भी मन होता है, लेकिन उसके साथ देखिए जो समाज में व्यवस्था चल रही है वो कितनी है। उसका एक मौसा है जो दिल्ली में रहता है और दिल्ली में यहाँ पे काम करता है, तो उसके पास कुछ पैसों का, कुछ उसने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो इन लोगों की तो नहीं है। माँ ने बिल्कुल सच में कहा, डॉक्टर साहब जितने पैसे आप मांग रहे हैं मेरी तो औकात नहीं। फिर उसका मौसा कहता है कोई बात नहीं आप डॉक्टर साहब भर्ती करो। हमने कहा आप सलाह कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ इलाज का एक तरीका है सुपर फास्ट ट्रेन, कि आप यहाँ से यदि देहरादून से चले तो वो दिल्ली ही रुकेगी, क्योंकि उसमें बीच में कोई गुंजाइश नहीं। यदि हम कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे आपने देखा जिसमें 3-3 साल लगते हैं, 20-20 ऑपरेशन करने पड़ते हैं, अब 10 ऑपरेशन के बाद तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। वो इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हमें उससे ठीक करना है और हमें उसके परिणाम देखने हैं और आप लोगों को दिखाने हैं। यदि बीच में चला गया तो हमारा क्या फायदा। वैसा हमारे यहाँ एक उद्देश्य नहीं, ये मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूँ। पैसे के लिए हम काम करें, इससे हमारा काम चले और पैसे के माध्यम से हम आपकी सेवा कर सकें, ये उद्देश्य। उस लड़के से मैंने पूछा, एक और बात है, वो लड़का 18 घंटे तक ट्रक चलाता है। आप सोच सकते किसी के लिए संभव हो, क्योंकि वो जवान है तो चला भी सकता है। सिर्फ यहाँ से जाने के बाद आगरा में रेस्ट लेता है। आगरा में रेस्ट भी क्या होता है, खाना पीना टट्टी पेशाब का रेस्ट होता है। 2-3 घंटे के बाद फिर चलता है, फिर इंदौर जाता है। जिसका जो इंदौर में एक्सीडेंट हुआ वो सुबह सुबह हुआ, 5-6 बजे आप अंदाज लगा सकते हैं। जो आपने अभी झपकी की बात की है, रोज इसमें हो रहा है, यही उसके साथ घटना घटी है। चूंकि हम लोगों ने कोशिश की और उद्देश्य हमारा ये था, ये नहीं था उद्देश्य, ना मैं उनको ये बताता हूँ कि हमें तुम्हारी टांग बचानी है। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये कि इस तरह के हम एग्जाम्पलरी काम करके आप जैसे लोगों को बता सकूं, प्रशासन शासन के लोगों को बता सकूं और नीति निर्माताओं को बता सकूं। सिर्फ ये उद्देश्य होता है, क्योंकि कैसी घटनाएं हो रही है। आप सोचिए यदि वो लड़का आपका भाई है तब आपके ऊपर क्या गुजरेगी। यदि हमारा बच्चा हो तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी, किसी का बहन का भाई हो तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। जो अभी गौरव ने बताया, ये लड़कियां जितने ये हमारे स्टाफ है, बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है। आपने देखी हुई लड़कियां उस शादी में गई हुई थी जिसमें गौरव ने बताया 1 लाख इज बेटर देन नो लाख। उस लड़की, वो माँ विधवा है, उसकी एक बहन है जिसकी शादी नहीं हुई थी, इस लड़के की भी शादी नहीं होती। हमारे ख्याल से 5-10 बीघा क्षेत्र इसमें छिंदवाड़ा में लाल तप्पड़ में रहता है, उतनी जमीन है। उसने कहा डॉक्टर साहब हम पैसे आपके तभी दे पाएंगे जब हमारी जमीन का सौदा हो जाए।
मुझे बहुत दुख होता है पैसे लेने में, लेकिन करें क्या, क्योंकि जब महीनों इलाज चलते हैं तो हम चैरिटी नहीं कर सकते, ना हमारे इतने साधन हैं। लेकिन हाँ ये है, हम किसी काम को आधे में भी कर सकते हैं, चौथाई में भी कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं और यही हम करते हैं। यही हमारा अपने ढंग से और हमारी संस्था का समाज के लिए सेवा है और इसी ढंग से हम राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि गौरव ने बहुत सी आपको बातें बताई हैं और जैसा पहले गौरव ने कहा था कि आप लोग इतने यंग हैं, आप वल्नरेबल हैं, आपसे ही घटनाएं होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि आप में हार्मोन्स, आप एज है, आपकी एक्टिविटी है, उम्र है, आपको हर काम करने की इच्छा है। आपको लगता है हमने नई मोटरसाइकिल ली है, यार ये 70-80 तो कहते हैं, 120 चला के देखें, रोड बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप में ही होता, हम सब में होता। जब हम आपकी उम्र के थे तो हमारे में भी ये होती, लेकिन जो हमारे से गलतियां हो गई वो आप ना करें, यही हमारा आपसे सलाह है और वो अनुरोध है। ये मैंने एक लेक्चर दिया हुआ था, जैसा मैंने सबको बताया हुआ है कि हमने ये पार्लियामेंट ऑफ मेंबर्स को, क्योंकि मुझे पद्मश्री मिली हुई है, उसी के नाते क्या मैं ये कह रहा हूँ, बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया था, फिर उन्होंने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक दी थी, ओरिजिनल बुक है सर, जिसका वजन है लगभग 4.5 किलो और इसमें कैलीग्राफी, सभी के सिग्नेचर्स हैं। और फोटो में इसमें एक उद्देश्य जो आपने देखा हो या इसमें ध्यान दिया हो, एक चीज को बहुत गौर लगाया गया है और इसी पर्पस से लगाया, लिखा भी गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये फोटो तो आजकल कहीं भी कोई किसी से बना सकता है, तो इसी उद्देश्य से इसको लिखा। ये मैं कई तरह पे करते रहते हैं स्कूलों में। हमने जैसे जितने भी, अभी रिसेंटली हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में, क्योंकि मैं चंडीगढ़ गया हुआ था और एक चंडीगढ़ के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनको भी पद्मश्री मिली हुई है। कॉलेज में किसी तरह के हैं, तो हमारा ये था कि हम सभी लोगों को बताते रहते और करते रहते, और मैं सबका आभारी हूँ। जैसे इन डॉक्टर का मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और इसमें मैं बता सका। ये मैंने सबसे पहले लिखा हुआ था सर, ये आर्टिकल 2001 में लिखा हुआ था और मुझे नजीवाद में इसके, जब मैंने 98 ईयर ओल्ड का एक हिप रिप्लेसमेंट किया तो अखबारों में नाम आया, बहुत नाम आया, पेपर में आया, तो मुझे रेडियो से इन्विटेशन आया कि आप इसके ऊपर बोलिए। तो सड़क सुरक्षा के ऊपर तब मैंने किया हुआ, तो इसमें गढ़वाल पोस्ट में इसको छापा भी था। अब इन स्लाइड को देखिए, अल्मोड़ा बस खाई में गिरी, 29 मरे, मार्ग से कुचलकर 10 की मौत। मारुति 10 नहीं ले सकती, लेकिन 10 को कुचल जरूर सकती। 38 मरे, 46 मरे, 23 मरे, कोई एक ही नहीं। ये 2004 की घटना है और अब आप देखेंगे आज के माहौल में तो उसमें भी बहुत कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा। ये देखिए आरटीओ उत्तराखंड 2013 के रोड एक्सीडेंट, कार हादसे में 3 भाइयों समेत 4 मरे, 14 डेड आफ्टर व्हीकल फॉल्स इनटू द गॉड। इस तरह की घटनाएं हैं। अब आप इसको सोशल पॉइंट से देखें। पहले एक व्यवस्था थी कि यदि घर में किसी एक भाई की डेथ हो जाती है तो उसकी जो विडो वाइफ है वो कोई दूसरा भाई रख सकता, लेकिन आप सोचिए कि जहां 3 भाई की डेथ हो जाए और एक भाई हो, तो क्या ये संभव है? नहीं। इसलिए सब चीजों को देखने की और सोचने की बातें हैं कि इनको कर। ये देखिए पूरा परिवार ही इसका खत्म हो। ये हम सब जगह, उत्तराखंड में दिया मैंने, पहले तो जॉलीग्रांट में दिया, पहले मैं अपने ऑर्थोपेडिक में देता, फिर मुझे लगा ये इतना अच्छा है कि क्यों ना इसको पब्लिक में दिया जाए। एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर कि हमने इसको पब्लिक में शुरू किया और इसको हमने पूरी दुनिया में दिखाया हुआ। इसको ऐसे दिखाते थे जैसे अभी गौरव ने कुछ फोटो दिखाई, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो जैसा आप हंस रहे थे ऐसे वो लोग भी हंसते हैं कि भाई हिंदुस्तान में इस तरह का काम होता है। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है नींद और नशा। जिस तरह की आप ये देखते रहते हैं, सब स्कूलों की है। ये जीआरडी कॉलेज है, ये केबी स्कूल है, कई स्कूलों में मैंने किया हुआ है और जहां भी मौका मिलता है। ये भी मैंने हरिद्वार में टीचर्स, जो उत्तराखंड के जितने टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये पतंजलि में एक प्रोग्राम किया हुआ था, उसी में आए थे कि उत्तराखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट के 13 डिस्ट्रिक्ट के सभी टीचर्स आए, उनको भी मैंने ये कहा हुआ था। और इस तरह के हम करते रहे, सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो, सेमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, इससे कोई नहीं होता। और मैं इसको स्ट्रांगली मानता हूँ 90% जो एक्सीडेंट होते हैं वो ड्राइवर की गलती से होते हैं। और इसी मैसेज को बार बार देते रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, प्रेस में भी देता रहता हूँ और लोगों को बताता रहता हूँ।
और जब कभी होता है किसी के नाम से, जैसे मेयर आया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया, मिनिस्टर आ गए, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिसिटी बहुत मिलती है, तो उनको भी मैं अपने सेंटर पे, हम लोगों ने करीब 200 के करीब इस तरह के। अब ये देखिए घटना कितनी खतरनाक है, आप देखिए एक ही फैमिली के 3 आदमी खत्म हो गए, 3 पुश्तें ही खत्म हो गए, दादा दादी, माँ बाप और बच्चे, और इस तरह की घटनाएं हो रही, किसी घर में हो जाए, कितनी खतरनाक है। मेले में शामिल होने देर रात 9:45 बजे, अब बताइए मेले में गए, खाया पिया ना हो, थके ना हो, और फिर आप घर आ रहे हैं, तो क्या होता है, इस तरह की घटनाएं होती। ये अभी 18 मार्च की है, अभी कुछ दिन आपने पहले देखा होगा, इसमें 5 है, इसकी देखिए पिकअप में 10 या 12 आदमी बैठ सकते, 25 बैठे हुए थे, और ओवर स्पीडिंग कर रहा था, शराब पिए हुए था। अब बताइए क्या हो, और ये बच्चे ही कर सकते हैं इस तरह की। ड्राइवर डेड, एसडीएम, ये भी तो हरिद्वार की खबर है, आपने तो सुना ही होगा, जिसमें एक एसडीएम इंजर्ड हो गई है, वो भी बड़ी क्रिटिकल है, आईसीयू में कुछ है, उनका चल रहा है, कुछ ही दिन पहले हमने ये पढ़ा होगा। 7 एमबीबीएस स्टूडेंट, आप सोचिए कि बच्चे, आप लोग देखिए कि आपको कितना 20-22 साल के आप लड़के हैं, माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, आप सोचो, और आप लोग हैं अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, अभी कुछ दिनों में आप पैसे कमाने वाले होने वाले हैं, और किसी घर में ऐसा हो जाए तो क्या हुआ, आजकल तो बच्चे ही 1 या 2 हैं, तब इसमें कैसे क्या हो सकता है। ये देखिए सीनियर रेजिडेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जैसा मेरा बेटा है, इतने बनने के बाद ये घटनाएं घटती हैं, किसी के साथ क्या, रिप्लेस बॉस इन द शाइनिंग स्टार, बात सच है। जब लोग डॉक्टर इंजीनियर आप लोग बन रहे हैं, आप लोग देश के कर्णधार हैं, फैमिली के नहीं राष्ट्र के भी, तो यदि किस तरह से होता है तो देश का कितना नुकसान होता है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। इसमें 8 लोग गए, मुंबई से गोवा गए, रात में, दिन में दुकान चलाई, रात में गाड़ी चलाई, 5 बजे पेड़ से टक्कर हो गई, डेथ हो गई, 7 की एट द स्पॉट डेथ हुई, एक ही आदमी बचा हुआ थी, सबकी उम्र 20 से 30 साल। ये देखिए एक एक फैमिली के गए हुए थे, एक के क्रिमेशन में 11 आदमी की डेथ हो गई, सिर्फ बच्चे ही नहीं जाते। इस तरह की बहुत सी घटनाएं फोन पे है, देखिए फोन इतना जरूरी था, गाड़ी रोक लेता, वो रुक जाता, लेकिन 40 आदमी को फोन करने से 40 आदमी की डेथ हो गई। और जैसा कि गौरव ने बताया, एक्सीडेंट्स हैपेंस द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और मोबाइल फोन पे तो इतनी मोर्टेलिटी, यदि एक्सीडेंट होता मोबाइल करते समय, तो पहले तो ये है कि 40% लोग, 10 में से 4 की तो डेथ होनी ही है, उसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं। क्यों? उससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, फोन हो जाता है। अब जैसे बाइक चला रहे हैं, आपने देखा है लोग बाइक पे लगा, नंबर भी मिला रहे, एक से पकड़े हुए दूसरी उंगली से नंबर पकड़ा, ये तो मैंने खुद आंखों से देखा। इस तरह की गलतियां होती हैं। एक्सीडेंट्स जो हैं वो एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। मोटरसाइकिल पे 3 आदमी बैठे हुए थे, तीनों लेट गए, ट्रेन की चपेट में 13 मासूम। ये देखिए फोन पे चल रहा था, लड़के चिल्ला, हादसे में जाहिर कृष्णा ने बताया, वैन में सवार बच्चों ने ट्रेन आती देख शोर मचाया, मानो रेड क्रॉसिंग में गेट में ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन ईयरफोन लगा होने के चलते चालक सुन नहीं सका और दर्दनाक हादसा हुआ। मैं वहां था तो नहीं, ना मैं अंदाज लगा सकता हूँ। ड्राइवर साहब एक ही गाना सुन रहे होंगे, या तो शीला की जवानी या मुन्नी बदनामी। और इस तरह से ये घटनाएं घट रही, बसें जा रही है, 27 आदमी की मौत हो रही है, तरह तरह की। और मैं इसको मानता हूँ, हायर द स्पीड स्टीपर द रिस्क ग्रेटर द फैटेलिटी। और जब तो अभी तो क्या है सर, अभी तो रोड ट्रैफिक बने नहीं, ये तो 1 किलोमीटर में एक ही डेथ ही तब का है जब अटल जी का कोऑर्डिनेटर योजना चल रही थी। अभी गडकरी जी का जिस तरह से रफ्तार चल रहा, जब हमारे यहाँ लाखों किलोमीटर बन जाएंगे तब क्या होगा, हर किलोमीटर में यदि एक की डेथ होती है तो आप लगाइए सर लाखों किलोमीटर में कितने की डेथ। गरीबी, यहाँ पे लोग इसको भी नहीं देखते, इतना बड़ा ट्रक लकड़ी के पुल पे चल सकता है, अब इसको क्या कहें, एक्सीडेंट, सुसाइड, होमिसाइड। यहाँ पे देखिए बंदरों का हम कभी नाच देखा करते थे, मदारियों का, आजकल बस सिर्फ एक्सीडेंट का देखते हैं। और ये अंकल जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए कितना बिल्कुल उसी से देख रहा है, साइकिल की स्पीड भी नीचे रख रखी है कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि कई लोगों के लिए एक्सीडेंट रोज रोज थोड़ी होती। अब इसे कई तरह की चीजें होती है, जैसे ओवरलोडिंग है, जरूरत भी है, नीड है, कल्चर है, इस तरह के लोग भरे हुए हैं। यहाँ पे देखिए इंजन में ही बंदे नहीं है, क्योंकि वहाँ गर्मी ज्यादा होती है, और कहीं बैठ गए तो जल जाएंगे, फिर बैठ भी नहीं पाएंगे। देखिए ये बिहार की फोटो, ये देखिए अभी जैसे गौरव ने बताया, इसने क्या है, हेलमेट से अपनी लाइफ बचा रखी है, क्योंकि मैकेनिक पैसे लेगा। डॉक्टर संजय जैसे बहुत से डॉक्टर फ्री में इलाज कर देते हैं। टूट गई तो इलाज हो जाएगा, लेकिन हेलमेट खाली टूट गई तो वो कौन सा करेगा। अरे सच है, मैकेनिक इतने चैरिटी नहीं करते जितने की डॉक्टर करते हैं, इसको मैं चैलेंज से कह सकता हूँ।
ओवर लोडिंग है, एक प्रॉब्लम है लोगों को, जहां जिसके साधन है उसी तरह से हो ना। ये वाले क्या करेंगे, लोग लगे हुए हैं कहीं पे, जहाँ दूध नीचे रख दिया, ये हाई टॉलरेंस रॉड एक्सीडेंट्स इन इंडिया ह्यूमन इकोनॉमिक लॉ, इसी उद्देश्य से वहां पे। इससे ऐसा ही नहीं, आदमियों का भी नुकसान हो रहा है आर्थिक रूप से, क्योंकि हर आदमी एक्सीडेंट के बाद गरीब हो जाता है। ये पाकिस्तान की फोटो है, कल्चर सेम ही है, कोई गलत नहीं है। ये हमारे उत्तराखंड की है, ट्रक में 90 आदमी लदे हुए थे, आप सोचिए बोरे लादे जा सकते हैं, ये नहीं, लेकिन हो रहा है। यहाँ पे देखिए भट्टी साहब के साथ भी है, ड्राइवर को नींद आ गई थी सर, भटिंडा गए हुए थे, तो इसमें रात में इन्होंने प्रीमियर के लिए अपना प्रेस दे दिया, सुबह इनको जलंधर में प्रेस रिलीज दे दी, रात में थके हुए थे, लड़का ही चला रहा था, एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुई। उनकी एज में हमारी एज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन अभी भट्टी का कितना नाम होता आप समझ लें। कभी आपने उनका प्रोग्राम, गोपीनाथ मुंडे मंत्री थे मोदी जी के में, डेथ हुई, सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, डेथ हैज बीन रिपोर्टेड। साहब सिंह वर्मा मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर रहे दिल्ली के, आपने सुना। और ये आपको सिद्धू साहब है, सिद्धू साहब अभी से नहीं ठोक रहे हैं, बहुत पहले से ठोक रहे हैं। हाँ, इन्होंने एक बूढ़े राजा को ठोक दिया, उसकी डेथ हो गई, इनको जेल जाना। तो इस तरह की घटना है। हाँ, आपने कुछ मिस कर दिया, सलमान खान को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे लेक्चर के स्टार प्रचारक हैं। आपने सही कहा है, एक हमें और लगा रहे, जोगी साहब के साथ भी यही हुआ था, ये आजकल भी हुआ, देखिए ना, 3 किल्ड सो गया बंदा। रात की जितनी भी घटनाएं हैं वो इस तरह की होती हैं। हाँ, ये हमारे यहाँ हुआ था, सड़क पे 3 बच्चे, एक दूर स्कूल का, एक इसका DIT का, तीनों लोग पार्टी, बर्थडे पार्टी था, रात को रोड पे ये सारे दौड़ रहे थे और रात में एक्सीडेंट हो गए, ऑल ठीक है। कई तरह की ऐसी घटनाएं, एक अमरजीत जी हैं, ये हमारे यहाँ दिल्ली में पढ़ते थे, इसको भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसलिए ये सुनना भी जरूरी है और आपके लिए समझना भी जरूरी है। ये अमरजीत जी पैसे वाले के लड़के हैं, इनको BA करने के लिए लंदन भेजा माँ बाप ने, लेकिन इनका मन नहीं लगा वहां पे, फिर आ गए। क्यों? क्योंकि इनको तो इंडियन ही पसंद थे ना। अब गिरफ्तार आ गए, माँ बाप को बहुत बुरा लगा, लड़का लंदन से कितनी बदनामी होगी, पैसे वाले का लड़का। इन्होंने ये सच घटना बता रहा हूँ, चंडीगढ़ में DAV स्कूल में एडमिशन कराया और वहां पे उनको मारुति स्कीम दी गई, गर्लफ्रेंड इन्होंने लुधियाना की बनाई। और आप ये देखिए टाइम का आप ध्यान रखें, 5 PM से 5 AM उन्होंने कहा, स्कूल का जितना पढ़ते होंगे आप अंदाज लगा सकते हैं। 5 बजे से लुधियाना गए, गर्लफ्रेंड के साथ डिनर किया, डिनर वाले आपके प्रोग्राम किए और लौट के इतने सिंसियर थे कि मुझे कॉलेज भी अटेंड करना है। इसके बाद कॉलेज आने के लिए उसी रात लुधियाना से वापस आए, पटियाला में इनकी एक्सीडेंट हो। एंड दिस आई टोल्ड इन पटियाला लेक्चर। तब मुझे पटियाला उसी समय फोन आया कि डॉक्टर साहब उसका अमरजीत का एक्सीडेंट हो गया, मैं वो बोल रही हूँ, तो मैं पहचान गया। तो हमने कहा ले आइए, तुम्हें सोचा चंडीगढ़ में होगा, कहते नहीं वो तो एक्सीडेंट पटियाला में होगा। तब मैंने लड़के से सब पूरा किस्सा पूछा, तब मैंने ये आपको बताया। सलमान खान, कहाँ लोकेशन, GPS बिफोर स्लीपिंग। और आप दूसरी भी देखिए, पढ़ने में सहूलियत तो मैं बता, एक्सीडेंट कौन सा रोज रोज होता है, इसलिए एक सेल्फी तो बनती है। आपको लगता है इस तरह की सेल्फी बनाने का कोई सेंस है, लेकिन लोग कर रहे हैं। ये देखिए महाभारत चल रहा है सड़कों पर, मैं कहता हूँ यदि बनना है तो मेरी काम बनिए, मेडल लाई, ये ना करिए। हमारे यहाँ कुछ लड़कियां ये फोटो कई बार देख चुकी हैं, तो उनकी हंसी रुक नहीं रही, उन्होंने कहा आपने ये फोटो क्यों नहीं मिस कर दी है ना। बताइए सब खरोच आ जाए तब क्या होगा। और खरोच आने से सूजन आती है, और सूजन आ जाने से सूजन ही आने से कहीं शरीर में टांगे कटती भी हैं। और आपको ये बताएं, कटने के बाद प्रोस्टेट लगती, टांग लग जाती, जैसे कि दीदार ने लगाई। लेकिन यदि इनके कट गया तो कौन सी प्रोसेस लगेगी?
इस तरह के हमारे ख्याल से एडवेंचरस काम करने की जरूरत नहीं। इमेजिन करो यदि हजारों में या लाखों में यदि ऐसा हो गया तो आप सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत थी। तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लोग करते रहते हैं, लोग बहुत एडवेंचरस हैं। इस तरह से महाभारत यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। ये है जज साहब को ही ठोक दिया क्योंकि जजमेंट गलत दिया था। ये फोटो सर क्या नहीं कर, ये देखिए क्या नहीं कर रहे साहब, खा भी रहे, पी भी रहे, सुन भी रहे, क्या पी रहे ये नहीं पता है, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो कह रहे हैं, तो आपको लगता है घर पहुंच पाएंगे? नहीं। लेकिन यदि पानी भी पी रहे हैं और इस तरह से पी रहे हैं तो हमारा और आपका शायद ये पक्का है कि इनकी पूरी लाइफ तो नहीं होगी यदि इनकी आदतें यही रही, इन्होंने बदली नहीं तो। फोन पे बहुत सी घटनाएं हो रही है, देखा मैंने बताया कि 40 लोगों को इस तरह से कई घटनाएं हैं इसमें कि हम आपको बताएं। गरीबी बढ़ रही है, हर आदमी का एक्सीडेंट होने के बाद गरीबी बढ़ती है, चाहे अमीर हो या गरीब। यदि आदमी करोड़ रुपए भी कमा रहा है, यदि ऑफिस नहीं जा पाए, बिजनेस नहीं कर पाएगा तो भी तो उसका नुकसान हो रहा है कि नहीं। और ये देखिए गडकरी साहब ने अभी बहुत ज्यादा अच्छी बात कही है कि मैंने पहले भी देखा हुआ, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ सर है 10% ग्लोबल रोड क्रैश विक्टिम्स इन इंडिया, जबकि हमारे पास व्हीकल सिर्फ 1% दुनिया में है, लेकिन इतना हो रहा है। और इस तरह से जीडीपी भी हो रही है। मेरा मानना है जितना नुकसान हो रहा है, हमारे देश में हर साल 6 बुलेट ट्रेन चल सकती है, इतना पैसा रोड ट्रैफिक में चलता है सर। एक कई तरह के केस हैं जो कि गौरव ने कहीं बता दिए हैं, तरह तरह के, जैसे लड़की लंगड़ी हो गई, अब बताइए इसको शादी में चाहे आपकी बहन हो, किसी की रिश्तेदार हो, उस लड़की के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। जबकि हमारे यहाँ सोसाइटी यंग लड़की 17 साल की बर्थडे मनाने गई थी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, जिस दिन इसका बर्थडे था उसी दिन एक्सीडेंट कर लिया। आप बोलिए फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। और इसका फादर भी ड्राइवर था। अब इन उंगलियों को बचाना काटना, ये तो लेफ्ट हैंड था। और ये स्पोर्ट्स की बहुत अपनी थी जिसको कि अवार्ड भी मिले हुए अपने स्टेट लेवल की थी। हमारा मानना है एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल, इनमें कार ड्राइवर रोड का ही होता है, तो ड्राइवर को हम मानते हैं कि वही रिस्पॉन्सिबल है, उसी को यदि अच्छे लोग होंगे। और ये है सरकार कह तो रही 50% डेथ ऑन रोड बाय 2024, मुझे तो ये दूर की कौड़ी ही नजर आती। 24 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 ही साल दूर है, लेकिन फिर भी यदि कोशिश है तो एक बहुत अच्छी कोशिश है और होना भी चाहिए। देखिए इसमें आप देखेंगे, इसको आप पढ़ेंगे और ये भी मानते हैं कि गवर्नमेंट में जो कोविड में हुए हैं वो कोविड से ज्यादा नंबर, जैसा कि गौरव ने बताया, और हम इस तरह का लिखते रहते हैं, करते रहते हैं, बताते रहते हैं। ये है इसी तरह से हम ये देखते हैं, रोड टेल्स स्टोरीज सम ट्रेजिक बट वर्थ लर्निंग फ्रॉम। सड़कों पे ही सब होते हैं, आपके शादी ब्याह की बात बाद में होती, पहले बातचीत होती, तब किसी से आप आई लव यू कहते हैं, उसी से आप शादी करते, बच्चे करते, रिश्ते बनाते हैं। तो रोड्स आर सो इम्पोर्टेंट। लेकिन कहीं अनहोनी घट जाती है तब उसी सड़क को माँ बाप जिंदगी भर बददुआएं दे, अरे यार हरिद्वार की उस सड़क पे चले गए थे इसलिए वो हो गया है, वहां पे वो मंदिर था इसलिए होगा, उस पीर को आपने नहीं पूजा था, वहां पे मत्था नहीं टेका था। इस तरह की घटनाएं को दुर्घटनाएं जिंदगी भर की चलती रहती है। और मैं बार बार कहता हूँ, जितनी ज्यादा गति होगी उतनी ज्यादा क्षति होती। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, स्पीड को आपको लिमिट में रखें। बहुत है जैसा मैंने पहले बताया, इससे गरीबी बढ़ रही है और हम सब लोगों का हम करते रहते हैं। जैसे पुलिस वाले हैं, डायरेक्टर हैं केबी खुराना जी, IPS ऑफिसर है, ये लोग हमें बुलाते रहते हैं, हमने इनको भी चीफ गेस्ट अपने यहाँ बुलाया हुआ इस तरह से, क्योंकि जब आप लोग जैसे लोग आते हैं तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगता है। इनकरेजमेंट आपके यहाँ आए, आप लोगों का इतना सहयोग रहा कि ये फोटो हम जाने कहाँ कहाँ दिखाएंगे, बहुत सी जगहों पे दिखाएंगे। और आप जानती हैं खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदल लेता है, नहीं? कुछ लोगों को लगे अरे भाई गुंटूर कांगली में 100 साल वालों ने आपको पहुंचाना, तो मैं तो अभी 10 साल से हैं, क्यों ना मैं भी डॉक्टर साहब को बुला लूं। तो लोग बुलाते भी, निमंत्रण भी देते रहते। हमने ये लेक्चर्स किए हैं, इंडिया बुक में रिकॉर्ड्स में हुए हैं, और फिर जो हमने कॉलम पाइनियर में लिखते रहते हैं वो भी इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आते हैं। कभी भी आप हमारा या गौरव का नाम लिखेंगे, पाइनियर लिखेंगे, नेट पे जाएंगे, जो आपको आर्टिकल पसंद होंगे वो आप पढ़ सकते, सुन सकते, देख सकते हैं। और अंदाज से भी आप हमारा नाम डाल देंगे, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, फिर कहीं ना कहीं से आपको लिंक मिल ही जाएगा। और पढ़ने लायक है, मेरा मानना है, बहुत अच्छे लिखे हुए और बहुत सोच समझ के लिखे हुए। सिर्फ इसलिए जैसा मैंने कहा था,
हम समाज के ही ने हमें बनाया हुआ, और मैं इसको अपनी कर्तव्य और जिम्मेवारी समझता हूँ कि हम समाज को कुछ दें। क्यों? मैं जानता हूँ मेरे हाथ में बहुत कुछ देने को है, इसीलिए हम इसको जबरदस्ती भी, आप माने यदि पूरी बात को आप सोनिया और सुनील कुमार जी की बात को सुनेंगे देखेंगे तो कई बार हम आप लोगों से बार बार गिड़गिड़ाते भी हैं, इस पर्पज से गिड़गिड़ाते हैं कि एक मौका तो दीजिए। और मुझे उम्मीद है यहाँ पे यदि 250 बच्चे बैठे हुए, यदि इनमें से एक बच्चे ने भी गया और एक बच्चे का भी एक्सीडेंट से जिंदगी बच गई तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा और मैं समझूंगा कि मैंने की अपना जो राष्ट्र के लिए जो सेवा करने का कर्तव्य था उसको मैंने पूरा किया। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये मैंने माननीय सांसदों को अनुरोध किया था कि कम से कम रात में यात्री वाहन कम से कम चलने चाहिए, यदि आवश्यक हो तो वाहन चालक को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत आज क्या हो रहा है, हमारी सरकार ने टाइम को और बढ़ा दिया है जिससे लोग और रात में जाए। एक घटना देखिए, 5 फैमिली मेंबर्स किल्ड आफ्टर कॉल, आपने पढ़ा होगा, ये 8 तारीख की घटना है, 9 तारीख को अखबार में आई हुई है। एक्चुअली जिस दिन मैंने लेक्चर दिया था पटियाला में उसी दिन खबर आ गई थी, लेकिन मैं इसको जो इसमें खास तौर से कल लड़की ने जिसमें लिखा हुआ एक्सीडेंट एट टोटा घाटी नियर देवप्रयाग एट 6:30 AM। आप ये सोचिए, ये दूरी है सर 10 घंटा 40 मिनट की, 11 घंटे, और 11 घंटा आदमी गया होगा और एक ही चलाने वाला था। उसको आप जिसको डिटेल में जाएं, 40 साल का व्यक्ति था, वही चला रहा था, उसकी वाइफ थी, उसका बेटा था, उसकी बेटी थी और उसके साथ में भतीजी थी जिसकी 4 दिन के बाद शादी होनी थी। यदि वो जिंदा रहती तो कल उसकी शादी हो गई होती, अपनी ससुराल में बैठी होगी, लेकिन इसकी मौत हो गई। हुआ कैसे? गांव से मेरठ में शॉपिंग करने गए और लौट के आए होंगे। मैं समझता हूँ कि हम लोग कई बार इतने लालची और इतने पैसे बचाने के मन रुके नहीं होंगे और इसके बाद 10:30 आप सोचिए किसी आदमी के लिए आपको इतना चलना पड़े तो क्या होगा। इसके कारण है ड्रंकन ड्राइविंग, ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाइल टॉकिंग जैसे कहा, और नींद का अभाव, नशे के प्रभाव को हम बहुत स्ट्रांगली बिल करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया सरकार इसको कहे। और गवर्नमेंट को क्या है, शुड एजुकेट द ट्रैफिक रूल, शुड इन्फोर्स द ट्रैफिक रूल एंड पब्लिक शुड लर्न द ट्रैफिक रूल एंड शुड फॉलो द ट्रैफिक। क्योंकि ये सब है, कभी भी हो यातायात के नियम नहीं आते तो आप सीख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं। जब लोग आप इतना पढ़ लिख गए हैं तो क्यों नहीं कर सकते। और कोई वायलेटर है जो कि ट्रैफिक के रूल्स को रोकता है तो मेरा तो मानना है पनिशमेंट इज नॉट पेनफुल, हाउ कैन इट बी पनिशमेंट। यदि आपको लगता है 500 रुपए ज्यादा लगते हैं तो आपको ट्रैफिक तोड़ नहीं क्यों। हेलमेट लगाने में टाइम कितना लगता है, जैसे गौरव ने बताया सीट बेल्ट लगाने में क्या पैसे तो हम खर्च कर ही चुके हैं, चाहे उसमें लगाएं या ना लगाएं। तो आप अपने लिए नहीं, एक बात मैं आपको आपकी ये कहना चाहता हूँ, आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, ना आपको अपने लिए जीना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि दूसरों के लिए आप जिए। जब आप दूसरों के लिए जिए तो अपनी जिंदगी तो आप जिएंगे, इसमें कहीं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं आपसे। तो इस बात को हमेशा रखें। माँ बाप के भी तो सपने होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, अरे कोई ड्राइवर भी बनेगा, लेकिन घर की सेवा तो करेगा माँ बाप के लिए। यदि आप सोचिए किसी के माँ बाप के साथ जवान बच्चा चला जाता, उस माँ बाप की जिंदगी क्या होगी इसका आप अंदाज लगाइए। आपके साथ यदि आपके साथ घटना घट जाती, आपकी बहन की क्या होगी, यदि बहन के साथ घट जाती तो भाई के लिए क्या होगी, आप इसको अंदाज। यदि आपकी बहन नहीं होगी तो राखी कौन बनेगा, आप इसको सोचिएगा। और भाई नहीं होगा तो भाई दूध में जाएगा कैसे। जब आपकी वाइफ नहीं होगी, उसकी भाभी नहीं होगी तो होली खेलेगी किसके साथ। कभी आपने इस बात का अंदाज लगाया कि नहीं। माँ बाप होंगे तभी तो आप श्राद्ध के बारे में सोचेंगे, जब होंगे ही नहीं तब क्या सोचेंगे। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, लेकिन एक कविता लिखी है, टाइटल है आपको कभी मौका मिले उपहार संदेश का। ये मैंने हिंदी में एक पोएट्री की बुक लिखी है, कभी आपको मौका मिले पढ़ने का। अभी तो अमेज़न पे आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाली है। 3 मिनट में आपके से और लूंगा किसी कविता को आपको सुनाने। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं कैसे कटती हैं उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूं कैसे कटते हैं उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है। रात के सपने कम ही पूरे होते हैं, दिन के अधिकांश तक। कभी कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं अनंत को भी तो नापा जा सकता है। जैसा
हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूँ, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते, अपने होते हैं। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या चीज? सपने ही तो आधार है हमारे और आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य है हमारा और आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही सहयोग। सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती। सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति ही नहीं हुई होती, नहीं होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा ये सपना ही तो था, और क्या। हमारे सपनों को संवारने के लिए आपको धन्यवाद और आपके सपनों को संवारने के लिए हमारी। सोनिया ने एक रिक्वेस्ट की है और ये बहुत अच्छी है कि हम एक शपथ लें। मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि आप खड़े हो जाएं, अपना दाहिना हाथ आगे कर लें। अब जो मैं बोलूं वही आप इसमें से बोलें। आइए हम सब मिलकर 6th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 13-17 मई 2022 को जो हो रहा है, उसके अवसर पर हम शपथ लें कि हम अपने और समाज के हित में सड़क यातायात के नियमों को मानेंगे और उनका पालन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। Honorable Professor Dr. B.K. Sanjay, very renowned orthopedic surgeon. He has more than 35 years of medical surgery experience, internationally, nationally famed. बहुत कम जो भी आप लोगों को बताया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, पद्मश्री, ये सभी, क्योंकि आप यंग हैं, काफ़ी देर से आप वेट कर रहे थे, तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से, अपने आज के मुख्य अतिथि और इसके मुख्य वक्ता प्रोफेसर B.K. संजय साहब का स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपके साथ में उनके वो जूनियर डॉक्टर, उनके बेटे हैं डॉक्टर गौरव संजय, जो कि उसी क्रम में जो डॉक्टर साहब का नाम है उसी तरह से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और उत्तराखंड में देहरादून में संजय ऑर्थोपेडिक स्पाइन एंड मैटरनिटी सेंटर के नाम से उनका एक बड़ा रिनाउंस क्लिनिक है, जिसमें नॉर्थ इंडिया के अधिकतर लोग, और जो आपने बड़ा शॉर्ट में हिंट दिया, मेरा भी ऐसे ही एक बार इंटरेक्शन हुआ था, और तब से जो 20 साल से लगभग हम कभी कभी साल में एक बार मिलना होता है, फ़ोन पे बात होती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डॉक्टर साहब का जो चैरिटी का छोटा सा पार्ट उन्होंने बताया, बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं, लेकिन वो ठीक होके जाते हैं, उन पर पैसे हैं या नहीं है, वो कैसे अरेंज करते हैं, वो उनका सिस्टम है, उनका एक है, किसी से चाहे वो स्पॉन्सर कराएं या अपने लेवल से करें, तो इसलिए उनका सब जगह पे नाम है। एक और अच्छी बात यह है कि जब हमारा जो गुरुकुल कांगड़ी की जो मेडिकल एक लिस्ट है, उसमें जब यहाँ पे एक बार थोड़ी सी बात हुई, तो हमारे माननीय कुलपति जी से बात हुई, तो ये हुआ कि भाई क्यों ना हम भी अपनी यूनिवर्सिटी को उनके हॉस्पिटल को अपनी यूनिवर्सिटी के पैनल में लें। तो उसमें भी हमारे डॉक्टर साहब ने एकदम सहर्ष स्वीकृति दी और ये भी कहा
कि जब भी कोई आपके यहाँ से यूनिवर्सिटी से कोई पेशेंट आएगा उसके लिए भी जो एक मिनिमम या CGHS वाले रूल के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा वही किया जाएगा, तो उसके लिए ये भी बड़े गौरव की बात है। आजकल हमारे यहाँ जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ भी कन्वोकेशन 20 तारीख को ड्यू है और उसमें हमारे माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री आने वाले हैं, तो बड़ा बिजी शेड्यूल था, लेकिन उसमें क्योंकि रोड सेफ्टी वीक है, डॉक्टर साहब का ये था कि भाई यूथ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, तो उन्होंने अपने समय निकाला और हमारे कुलपति जी ने भी एकदम स्वीकृति दी कि भले ही टाइम कम है लेकिन उनका जो लेक्चर होना चाहिए, उनके टीम इंट्रोड्यूस होना चाहिए। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आवर डीन प्रोफेसर LP पुरोहित साहब, क्योंकि मेरा मौका नहीं लग पाया था, मैंने सुबह ही आपको बताया, क्योंकि आपके जो हेड्स हैं यहाँ जूलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस के और यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं प्रोफेसर नवनीत जी, उनको कहीं बाहर जाना पड़ा, तो हमारे पुरोहित साहब ने सुबह सुबह ही सारे अपने कार्य हमारे आप एग्ज़ाम के जो परीक्षा और जो एडमिशन के डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बिल्कुल इस प्रोग्राम में साथ दूंगा, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप युवा साथियों का है कि आपने अपने सारे जो और लेक्चर शेड्यूल को छोड़ के इस कार्यक्रम में भाग लिया। मुझे पता लगा कि अभी 20-30 स्टूडेंट और भी हमारे युवा छात्र थे जो कि उनको सीट नहीं मिली और वो फिर थोड़ी देर उन्होंने वेट किया और वो फिर चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो हमारे डिसिप्लिन में और हमारे गुरुकुल के कल्चर के हिसाब से अगर आप देखें तो वैदिक कल्चर गुरुकुल कल्चर के हिसाब से इसका बड़ा नाम है। तो हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट का जो एक्सीडेंट की बात हुई, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट है एंड दे आर द एम्बेसडर, जो आपने बताया डेफिनेटली ये उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और एक से एक चेन रिएक्शन होती है, विशेष साइकिल होती है। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आप समझते हैं कि अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई, आप अपने 4-5 साथियों को बताएंगे, अपने परिवार वालों को बताएंगे, कम से कम आप लोग तो ऐसा नहीं करेंगे। और इस लेक्चर का भी मैं वैसे टाइम कम था, लेकिन जब मुझे लगा कि भाई इतने सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन आए तो मुझे नहीं जाना चाहिए, बल्कि भी कुलपति जी का भी फोन आया कि आप आ जाइए इधर, तो मैं उठ नहीं पाया कि तो मुझे भी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अगर इस लेक्चर का इम्पैक्ट होगा हमारे प्रशासन को होगा कि 3-4 मोटरसाइकिलों पर जो बैठते हैं एटलीस्ट आप लोग तो बैठोगे नहीं और जो दूसरा कोई बैठेगा उसे भी रोकोगे, तो हमारे लिए तो आप चलते फिरते वॉलंटियर हो, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है और आप इसको मानेंगे और फॉलो भी करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे जो डॉक्टर नितिन भारद्वाज जी हैं, उधर डॉक्टर विनोद हैं और नितिन काम्बोज जी हैं और हमारे साथी जो नहीं आ पाए क्योंकि क्लास भी आजकल चल रही है, तो उन सब का बहुत बहुत मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और सभी युवा साथियों को जिन्होंने अपना इसमें समय लगाया सबको। और ये मैं अभी आपने जो एक प्रतिज्ञा ली, तो ये भी प्रतिज्ञा लीजिए कि सब रूल्स को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।